back to my channel NK Sangeet Pathshala. If you're new on our channel, then do subscribe and hit the bell icon. So today our topic is time theory of raga. This is a very important topic of plus 2. This question generally comes for 5 marks to 6 marks. So let's start with this. In Hindustani Sangeet, time theory is an important aspect. Every raga is sung at a particular time assigned to it. Though there are differences in earlier and modern opinions, but the basic principle is same. The rules applied in the ancient days are still followed. यहाँ तक ये बताया गया है कि कुछ साल पहले की म्यूज़िक और आज के म्यूज़िक में काफ़ी डिफरेंस है, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि जो राग जिस टाइम पर गाया जाता है या जिस राग में गाया जाता है वो उसी टाइम पर और उसी राग में गाया जाएगा. So next is O.C. Ganguly has written in his book Ragas and Ragani. So you need to remember the name of the writer and the name of the book as well. This question can be asked in Viva also. So O.C. Ganguly has written in his book Ragas and Raganis, there are some inherent qualities in some ragas which equate them particular season, attuned to them to a particular atmosphere. The melody interprets the spirit of the season and the seasonal atmosphere sympathetically to the character and essence of the melody. अगर आपको पूरा लर्न नहीं होता है तो आप सिर्फ यहाँ तक भी लर्न कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर सीजन. बट येस, आपको राइटर का नेम एंड बुक का नेम डेफिनेटली लर्न होना चाहिए. नेक्स्ट टैब हमारे पास भिशन स्वरूप जी ने जो लिखा था. According to Bhishan Swarupji, a raga to be attractive must be sung at a time when it pleases the mind of the singer or the hearer or the both. Very important. So here with this, your introduction part of time theory is completed. So next अब हमारे पास जो है time theory के different parts हैं. Time cycle of ragas. आपको अगर ये cycle learn हो गया तो आप definitely पूरा as it is अपना complete कर सकते हैं time theory को. जैसे अब हमारे पास नंबर 1 पर है परवेशक रागास ऑन द बेसिस ऑफ पूर्वांग एंड उत्तरांग, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्वर संयोग, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज ऑफ मध्यम, ऑन द बेसिस ऑफ वादी स्वर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स एंड लिरिक्स ऑफ द कॉम्पोजिशन. अब हम इनको डिटेल में भी स्टडी करेंगे. अब सबसे पहले अब हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ स्वर संयोग. इसमें आपके पास 3 कैटेगरीज है. संधि प्रकाश रागास, the ragas with komal re and dha, the ragas with shuddh re and dha, and the ragas with komal ga and ni. नेक्स्ट अब हमारे पास है संधि प्रकाश रागास. अब संधि प्रकाश का बेसिक मीनिंग क्या होता है? संधि प्रकाश मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब हमारा सूरज निकलता है और सब सूरज छिप जाता है. The ragas with komal re and dha are categorized as sandhi prakash raga. Sandhi prakash is the time of sunrise, before sunrise and after sunset. सम ऑफ द रागास. अब यहाँ पर आपके पास नेम्स गिवन है कौन कौन से रागास होते हैं एंड कौन कौन से टाइम पर कौन कौन से रागास गाए जाते हैं. जैसे कि भैरव राग है, कलिंगड़ा, भैरवी, ये रागास हैं जो डॉन के टाइम पर गाए जाते हैं. एंड रागास लाइक पूर्वी, मारवा एंड पुरा, ये इवनिंग टाइम में गाए जाते हैं. उसके बाद इनका टाइम गिवन है, ये आपको लर्न होना चाहिए. 4 AM to 7 AM इन द मॉर्निंग एंड 4 PM to 7 PM इन द इवनिंग. In this category, the place of Madhyam is extremely important. The morning ragas also have Shuddh Madhyam and the evenings with Tivar Madhyam. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो संधि प्रकाश रागास हैं वो कोमल रे एंड धा होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन क्या है? अब हमारे पास एक्सेप्शन ये है, द एक्सेप्शन इज राग भैरवी एज इट हैज़ कोमल गा. ये आपको क्वेश्चन वाइवा में कई बार स्टूडेंट्स को पूछा जाता है कि संधि प्रकाश में एक्सेप्शंस क्या हैं. जो लोग केमिस्ट्री के हैं उनको पता होगा कि एक्सेप्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो another important fact in sandhi prakash ragas is that shuddh ga and ni are certainly there. The exception is rag bhairavi, very important. नेक्स्ट है अब हमारे पास रागा with re and dha. Type 2. The ragas with Shuddh Re and Dha are sung after Sandhi Prakash ragas. In this category, the ragas from Bilawal, Kalyan and Khamaj Thaat are sung. So ये भी 2 times in 24 hours गाए जाते हैं. एंड इनमें भी मॉर्निंग रागास में शुद्ध होते हैं, शुद्ध मध्यम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड इवनिंग में तीव्र मध्यम को दी जाती है. यहाँ पर आपको ये सारा गिवन है, शुद्ध मध्यम एंड
तीव्र मध्यम। ये ज़रूरी नहीं कि जैसे लिखा है आपको वैसे ही लर्न करना है, आपको जैसे ईजी लगता है आप उन्हें वैसे लिख सकते हैं, बस बेसिक की पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स गिवन है, रागास लाइक यमन, शुद्ध कल्याण एंड भोपाली। नेक्स्ट है अब हमारे पास रागास विद कोमल गा एंड नी। So ragas with komal ga and ni are sung after the category of Shuddh, Re and Dha. The time frame for these ragas is 10 to 4 in the morning and also at night. अब इनके एग्जाम्पल्स हैं जौनपुरी, गंधारी तोड़ी आर संग एंड ये मॉर्निंग के हैं। अब इवनिंग के कौन से हैं आपके पास, मालकौंस, बगेश्री, जय जयवंती। ये जो 3 रागास हैं ये +2 सिलेबस में भी इंक्लूड किए जाते हैं। एंड बागेश्री राग की मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन करवा चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पूर्वांग एंड उत्तरांग। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑक्टेव इज कंसिडर्ड एज पूर्वांग एंड द सेकेंड पार्ट एज उत्तरांग रागास इन विच। तो अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव का होता है उसे हम पूर्वांग का कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हम उत्तरांग कहते हैं। जहाँ पर आपका पूर्वांग पार्ट होगा वहाँ पर अगर आपका जो एक डोमिनेंट स्वर है वो होगा तो हम उसे कहेंगे पूर्वांग रागा। ओके, और वो जो रागास हैं वो हम गाते हैं 12 PM to 12 AM। और जहाँ पर उत्तरांग पार्ट डोमिनेंट होगा उसे हम गाते हैं 12 AM to 12 PM और उन्हें हम कहते हैं उत्तरांग रागास। फाइन। नेक्स्ट अब हमारे पास परमेल परवेशक रागास। मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, बट ये है कि आप इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। परमेल परवेशक में क्या होता है, व्हेन द टाइम टू एंटर अनदर प्रहर इज टू बिगिन, लाइक जब हमारा एक प्रहर खत्म हो गया, हमारा एक टाइप ऑफ रागास कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद हमने जब नेक्स्ट टाइप ऑफ रागास को गाना है तो उसके बीच में रागास मुल्तानी एक्ट एज परमेल परवेशक, हम उनके एक इंडिकेशन देते हैं। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द चेंज इन थॉट। फॉर एग्जाम्पल राग जय जयवंती आफ्टर भीम पलासी, राग मुल्तानी is sung to indicate the time of evening ragas has begun. So next tab हमारे पास in the same manner after the time of Shuddh, Re and Dha in the evening the ragas like Rag Jai Javanti act as Parmel Parveshak. It will show the way towards ragas with Komal, Ga and Ni. अब नेक्स्ट टैब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज ऑफ मध्यम। हमने स्टार्टिंग में किया था शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम। अब वो होते क्या है, मध्यम होता क्या है। मध्यम स्वर इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ टाइम ऑफ द रागा। इट इज द मिडल स्वर ऑफ द ऑक्टेव। शुद्ध मध्यम इज यूज्ड इन मॉर्निंग रागास, फॉर एग्जाम्पल भैरव, एंड तीव्र मध्यम इज यूज्ड इन इवनिंग रागास। एंड सो दिस स्वर इज ऑल्सो नोन एज अधवा दर्शक स्वर। So this is again very important from MCQ point of view and Viva। आपको पूछा जा सकता है अधवा दर्शक स्वर किसे कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वादी स्वर। अब हमने पढ़ा था पूर्वांग एंड उत्तरांग के बारे में, अब इसमें भी वही है कि जिनका वादी स्वर पूर्वांग पार्ट में है वो पूर्वांग वादी रागा है, तो और वो गाए जाते हैं आपके 12 PM to 12 AM। और जो हमारे उत्तरांग पार्ट में होगा वादी स्वर उसे हम कहते हैं उत्तरांग वादी रागा। ये देखिए पूर्वांग पार्ट एंड आर कॉल्ड पूर्वांग वादी रागा, पूर्वांग वादी रागा, एंड जिसमें उत्तरांग पार्ट डोमिनेट है उन्हें हम कहेंगे उत्तरांग वादी रागा और वो गाए जाते हैं 12 AM to 12 PM। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। हम कहते हैं कि मेघ राग है ना गाइए, बारिश आएगी या बारिश का सीज़न है तो मेघ राग गाइए, या बसंत सीज़न है तो बसंत राग गाइए। वैसे ही जब हम कोई पर्टिकुलर सीज़न में पर्टिकुलर राग गाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लीज़ करता है माइंड को। सम रागास प्लीज आवर माइंड व्हेन सung in particular season. These ragas can be sung at any time in 24 hours. For example, Basant Rag in Basant season and Megh Rag in rainy season. Next अब हमारे पास है last but not the least on the basis of words, lyrics of the composition. The songs in which morning words like bhor are used, those are sung in the morning. The songs in which words like sanj, rain are used are sung in the evening. आई होप आपको ये टाइम थ्योरी का टॉपिक समझ आ गया हो। ये बहुत इजी है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।